Okay, so good morning, guys. So today we are going to start with the new chapter, which is neural control and coordination. So in this chapter, what we are going to discuss is we are going to talk about nervous systems. How many types of nervous system are there? Three types. What are those three types? ANS, TNS, पूरा बोल. central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system. Okay. So हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कि we have two major nervous system, which is central nervous system and peripheral nervous system. Under peripheral nervous system, we will have somatic nervous system and autonomic system. ठीक है. Then we are going to look for individually हर system में क्या क्या आता है वो हम लोग पढ़ेंगे. Correct? So we are going to also talk about neuron. So neuron is the basic functional unit of nervous system. So there are certain terms also which we are going to discuss here. एक आधा एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, जो लाइक आईसीएसई वालों ने पहले भी वो एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर. अगेन दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर इट अच्छे से. प्लस 12th में भी रिपीटेड है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये याद रखो तुम लोग. सिमिलरली बॉडी फ्लूइड्स वाला जो चैप्टर है, लास्ट 2 चैप्टर जो हम लोग ने किया है वो भी 12th HSC का है, तो तुम लोग को वो भी याद रखना है थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी. इज इट क्लियर? शैल वी स्टार्ट द चैप्टर. सो पहले हम लोग उसका ओवरव्यू कर लेते कि व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी. लेट्स डिवाइड. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 3 systems, राइट? 3 systems पढ़ने वाले हम लोग. First is your central nervous system, and the second one is peripheral nervous system. ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. Okay. So in central nervous system, we are going to study about brain and spinal cord. Next we have peripheral nervous system, जिसमें हमारे पास क्या है? Somatic and autonomic. Now when I say somatic, in this we are going to talk about cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves कितनी है पता है तुम लोग को? Anyone? So cranial nerves is going to be in your brain area, right? कितनी होती है? 12 in pairs. And spinal nerves कितनी होंगी? 31 in pairs. Then we have autonomic nervous system, जिसमें we are going to look for sympathetic and parasympathetic nervous system. Cool? Right? These all things we are going to study. अब see, I'll give you a best idea कि ये तुम लोग कैसे simply easily revise कर सकते हो chapter. Make sure करना कि after the completion of the chapter, जैसे ये एक चार्ट बना है, right? तो इसी के अंदर चीज़ों को fill करते जाओ. फिलहाल के लिए we are going to write a lot of things, correct? But after the end of the chapter, for your quick revision, this is nothing but this will give you a small mind map का category. तो इसी के अंदर अगर तुम लोग चीजें फिल करोगे तो तुम्हारे लिए एंड में इजी हो जाएगा. तो ये चैप्टर के लिए तुम्हारा मैं अभी से ही तुमको बता के रख रही हूँ, होमवर्क इज टू मेक अ माइंड मैप और अ चार्ट थ्रू विच यू कैन रिवाइज द होल चैप्टर. समझा?
जो जो मेन कीवर्ड्स है वो हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे और वैसे तुम लोग पूरा चार्ट को कंप्लीट करोगे. इसीलिए आई एम टेलिंग कि आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर या एंड ऑफ द चैप्टर यू मेक दैट. समझा? पक्का? अब जब हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे, सो डू यू गाइज नो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? Brain is divided into 3 parts: forebrain, midbrain, and hindbrain. Right? Correct? forebrain में क्या आएगा? forebrain में क्या आएगा? पहले क्या आएगा? cerebrum, and you will have diencephalon. diencephalon के अंदर thalamus and hypo. Cool? Easy? Correct? मिड ब्रेन में क्या आता है? nerves which are associated with or any guess? Focal reflexes. हिंड ब्रेन में क्या क्या आएगा? hindbrain is divided into cerebellum, pons, and medulla oblongata. राइट? फिर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो स्पाइनल कॉर्ड में भी ऐसे कुछ सेक्शंस है क्या? स्पाइनल कॉर्ड में विल लुक फॉर वेंट्रल रूट, डॉर्सल रूट, एंड उसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. राइट? यहाँ पे भी इन सब का स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द फंक्शंस हमको याद रखना है. फंक्शंस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो व्हेन यू मेक दिस चार्ट यू हैव टू मेक श्योर कि तुम हर एक का फंक्शंस उसमें पहले ऐड करो. इज इट क्लियर? श्योर? Let's start with the very basic thing of this chapter, which is going to be your neuron. So your neuron is the basic functional unit of nervous system. Right? बिना न्यूरॉन्स के कुछ पॉसिबल है नहीं. Why? Because neurons are the one which are going to help you to create, or we can say pass impulses to brain.
What are impulses? Impulses are electrical signals, right? हाँ कि नहीं? तो न्यूरॉन्स के भी हमको टाइप्स पढ़ने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर में न्यूरॉन में सबसे पहला आता है सेल बॉडी. क्या आता है न्यूरॉन में? सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज साइटोन, राइट? देन वी हैव एक्सॉन. तो न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस न्यूरॉन का किस में प्रेजेंट होता है? एक्सॉन में नहीं होते क्या न्यूक्लियस? So the terms such as nucleus, then what you will have? Dendrons, dendrites, anything else? Initial granules, और कुछ होता है? बस. एक्सॉन के पास क्या क्या होगा? न्यूक्लियस, node of Ranvier. Since they have node of Ranvier, obviously they are going to have myelin sheath, then neurolemma, then Schwann cells, और कुछ बचा है? माइटोकॉन्ड्रिया होगा उनके पास. Will neuron have mitochondria or not? फिर एक्सॉन टर्मिनल होगा, या नर्व एंडिंग भी बोलते हैं हम लोग उसको. एक्सॉन टर्मिनल के एंड पे होगा सिनेप्टिक knob, which is a bulb-like structure. और कुछ यहाँ पे होता है न्यूरो ट्रांसमीटर. एग्जाम्पल दे सकते हो कोई न्यूरो ट्रांसमीटर का? Now, can you guys tell me why do we need neurotransmitter? इम्पल्स को ट्रैवल करना. अभी हम लोग समझेंगे कि वो ट्रैवलिंग के लिए न्यूरोट्रांसमीटर क्यों इम्पोर्टेंट है. ओके, नाउ कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज सिनेप्टिक क्लिफ्ट? So there are two terms I want you to tell me. Synaptic cleft and second is synapse. Okay. Space is your synaptic cleft. Then what is synapse? Is it the gap between the two neurons? Impulse के नाम पे. So how we will define synapse?
I'll give you 2 minutes. Think and tell me how you are going to define synapse. Okay. So, coming back to yes, tell me, synapse क्या होता है? बोलो. What is synapse? अरे मेरे लिखने का क्यों वेट कर रहे हो? मैं तुमसे आंसर मांग रही है. What is synapse? बोल. Please बोल क्या junction है? It is nothing but the junction between the two neurons when we specify. ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है? पक्का? अभी ना सी फर्स्ट आई टेल यू, हम लोग ना टाइप्स ऑफ न्यूरॉन डिस्कस करते हैं, फिर इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं. ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट टाइप्स, पहला जनरल अपना टाइप जो बनता है वो होता है माइलेटेड एंड नॉन माइलेटेड. सो नाम से ही तुमको समझ रहा है कि क्या फंक्शन होगा. एक में माइलिन शीट प्रेजेंट होगी, एक में माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगी. बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट है वहां पे ही तुमको नोट्स ऑफ रैनवियर मिलेगा. जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है वहां पे नोट्स ऑफ रैनवियर नहीं मिलेगा. फिर हमारे पास ये एक टाइप हो गया. फिर दूसरा टाइप होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. ठीक है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कितने टाइप्स है हमारे पास? वी हैव यूनिपोलर, we have multipolar, and we have bipolar. ये मेजर टाइप्स है. ठीक है, सिंपल एंड डिफिकल्टी. ये एक और टाइप हम लोग ऐड कर सकते हैं विच इज गोइंग टू बी योर सूडो पोलर. सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. फिर आता है बेस्ड ऑन carrying your impulse. Okay, based on carrying the impulse में क्या आएगा? एक we have sensory, then we have motor, and third we have, we are talking about neuron. हाँ, नर्व का बात नहीं कर रही मैं, न्यूरॉन का बात कर रही हूँ. तो क्या नाम आएगा? एसोसिएशन न्यूरॉन आएगा या मिक्स्ड न्यूरॉन आएगा? सेम नहीं है दोनों. यस, एसोसिएशन न्यूरॉन. कूल. इंटर न्यूरॉन क्या होता है? या रिले न्यूरॉन क्या है? ठीक है यहाँ तक पक्का? देन वी हैव मोर टाइप विच इज afferent neuron and efferent neuron. क्या है हमारे पास? afferent neuron and efferent neuron. अभी नाम से ही तुमको क्या लगता है क्या काम होगा? फंक्शन बता सकते हो? Afferent is going to do what? Carry impulse from carry impulse from
रिसेप्टर टू CNS एंड इसका क्या होगा इफरेंट गाइस CNS टू effector, correct? Talking about these terms, there are certain terms जिसका definition I want you guys to tell me. First is impulse जिसका हमने already discuss कर लिया है. Then we have receptor. Receptor का मतलब क्या होता है? रिसेप्टर कौन से किसको बोलेंगे जहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है that is going to be your receptor, right? जहाँ पे stimulus आने वाला that is receptor. What is stimulus? Change in sudden change in external environment. Yes, okay. Then what is effector? जो रिएक्शन देने वाला पार्ट है दैट इज योर इफेक्टर, राइट? जैसे कि अगर अभी मैं तुमको मारने का एक्शन करूंगी तो यू विल ब्लिंक, सो दैट ब्लिंकिंग इज योर इफेक्टर. यहाँ पे रिसेप्टर कुछ था, क्यों नहीं था? तूने देखा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी योर रिसेप्टर. देखा तभी तो ब्रेन को लगा ना कुछ होने वाला है. इट इज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम जो रिसेप्टर है उसका तुमको एक्चुअल वर्जन दिखे ही. इफेक्टर का दिख जाता है रिएक्शन. इफेक्टर यू विल ऑलवेज सी जो अपना रिएक्शन देगा. जैसे अगर मैंने गर्म पानी तुम पे उड़ाया तो क्या होएगा? क्या होएगा? Any other term that we have to add? Impulse है, receptor है, effector है, then और कुछ terms जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. हाँ, ओके. डॉर्सल मतलब कौन सा साइड होता है और वेंट्रल मतलब I'll need you guys. अच्छा, then there is something called as response. So I want you guys कि इन सब का तुम definition लिखोगे, ठीक है? We have understood now in simple words कि सबका क्या meaning है, but I want you guys to write the definition इनका, ठीक है? Coming back to yes. So afferent और efferent neuron का हमने लिखा carry impulses from receptor to effector and यहाँ पे opposite. और कोई function लिख सकते हैं? अब simple है. Afferent neurons are obviously going to be sensory in nature and efferent neuron is going to be motor in nature. Now my question is, do you know what is sensory and motor? अरे हमने उधर लिखा ही है, उससे तुमको समझ. सेंसरी मतलब समथिंग विच द पार्ट और समथिंग विच इज गोइंग टू टेक द सेंस एंड पास इट. तो यहाँ पे हमने लिखा है कैरिंग इम्पल्स, सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? रिसेप्टर से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन लेके जाता है. मोटर क्या करता है? या लेट्स से CNS से इफेक्टर. इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सेंसरी इन नेचर, मोटर इन नेचर. करेक्ट? श्योर? और कोई पॉइंट? अभी अगर मैं एफरेंट न्यूरॉन बोल रही हूँ या इफरेंट न्यूरॉन बोल रही हूँ तो उनमें कुछ तो डिफरेंस आया होगा जिसकी वजह से वो सेंसरी को कैरी कर रहा है और ये मोटर को कैरी कर रहा है. सो एफरेंट में जो हमारे टर्मिनल डेंड्रॉन्स है दे आर मॉडिफाइड टू रिसेप्टर्स. क्या होता है एफरेंट में? टर्मिनल
dendrons are modified to receptors. तो इफरेंट न्यूरॉन में क्या होगा? मोटर में क्या होगा? गैस तो करो, कुछ तो आंसर करो. ओके अब मोटर में क्या होता है? एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन कम्स इन कांटेक्ट विथ मोटर प्लेट. and form neuromuscular junction. क्या फॉर्म करेगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसकी वजह से इम्पल्स क्या होगी? पास होगी. दिस इज क्लियर? श्योर? आगे बढ़े अभी हम लोग. यस, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. अब माइलेटेड में मैंने बोला क्या होगा प्रेजेंट? presence of myelin sheaths and nodes of Ranvier. यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे? एब्सेंट होंगे. अच्छा, मुझे एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन के बारे में बताओ, फिर हम लोग ये वाले टाइप पे, स्ट्रक्चर के टाइप पे जाएंगे. टेल मी अबाउट एसोसिएशन न्यूरॉन. व्हाट इज एसोसिएशन न्यूरॉन? Yes guys, tell me what is association neuron. Yes, connection between, or something which is going to connect your sensory and motor neuron. Connection between sensory and motor. Sensory and motor. Cool, simple. अभी हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का पार्ट है. फर्स्ट लेट्स लुक फॉर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर and then we can understand in more depth. अब see this diagram. Now this is the basic structure that we have already seen कि बीच में nucleus है. This is whole your cell body which is going to have your dendrons and dendrites. Then we have axon, axon terminal, जहाँ से axon का stretch start होता है, that is your axon hillock, right? सिनेप्टिक एंड बल्ब्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया. तो दिस इज अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, हम लोग थोड़ा इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इन डेप्थ स्ट्रक्चर देखते हैं, विच इज दिस. सो डेंड्राइट्स है. दिस इज योर, व्हाट इज दिस? दिस इज योर होल साइटोन है, राइट? सो साइटोन के अंदर क्या क्या दिख रहा है तुम लोग को? व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन द साइटोन? We have all the cell organelles which should be present. सारे cell organelles हैं, almost सारे हैं ना. We have rough ER which is going to form Nishil's body. Then we have polyribosomes. We have ribosomes. We have Golgi apparatus. Nucleus है, nucleolus है, membrane है, microtubule है, mitochondria है, smooth ER है, सब कुछ तो है. So a neuron का cell is going to have all the cell organelles which are required and which are in general present in other cells. Is my line clear? Sure. उसके बाद में क्या आता है अपना axon hillock. These are your dendrites. Then this is your neuron का rest of the part, right? Right? Axon का part है ना, जिसमें myelin sheath है, Schwann cells है,
अब न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है इसके बीच में, होता है ना न्यूक्लियस प्रेजेंट, एवरी नोड जो खत्म हो रहा है हर एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो साथ में दे आर गोइंग टू हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स, वेयर वी हैव लर्नड अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन विच चैप्टर वी हैव स्टडीड माइक्रोट्यूब्यूल्स? सेल के चैप्टर में। कहाँ पढ़ा था? यूनिट में ही पढ़ा था। कब पढ़ा था? जब हम लोग ने माइक्रोट्यूब्यूल्स का कौन से पार्ट में पढ़ा था? हम लोग ने 3 सेक्शंस पढ़े थे। देयर वाज माइक्रोफिलामेंट, ऐसे 3 सेक्शंस। देन वी आल्सो लर्न द होल प्रोसेस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन, जो यूटिलाइज होता है बाद में सेंट्रियोल्स में। साइटोस्केलेटन में पढ़ा था, याद आ रहा है? पढ़ा था कुछ तो, ऐसा कुछ तो स्कैन किया था हमने, है ना? Then coming to the end part, we have synaptic cleft, axon terminal, synapse बनेगा। अब ये जो zoomed part है, this is for your neurotransmitter। अब neurotransmitters का काम क्या होता है? See, as we said, let's say these are my 2 neurons, correct? Axon cyton, है ना? ऐसा होगा। This is my axon, this is my cyton, this is my axon, this is my cyton, let's say। तो अब ये दोनों को जब मैं साथ में जोड़ भी रही हूँ तो there is going to be a very small minute gap, जिस गैप को ट्रैवल करना है उस इम्पल्स को। तो एज वी नो उस इम्पल्स को क्या करना पड़ेगा? जंप करके दूसरे में जाना पड़ेगा। जब हम लोग ट्रेन में जाते हैं, जो कनेक्टेड ट्रेन होती है, तो एक कोच से दूसरे कोच में जाना है तो बीच में एक छोटा सा ब्रिज होता है जो क्रॉस करते हैं हम लोग। किया है कभी ट्रेन में ऐसा, एक कोच से दूसरे कोच? मैं एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रही हूँ, या फिर अरे मतलब छोटा सेक्शन होता है ना, जॉइनिंग सेक्शन होता है ना। अगर वो जॉइनिंग सेक्शन नहीं है तो क्या तुम एक कोच से दूसरे कोच जा सकते हो? नॉर्मल लोकल ट्रेन में क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? इज देयर एनी पासिंग? नहीं होता उधर, बट इसमें होता है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग ने वैसा जॉइनिंग का चांस दिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी देयर इज अ नीड फॉर द पासिंग ऑफ इम्पल्स। उसके लिए यू आर गोइंग टू नीड सम एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? कौन प्रोवाइड करता है? योर न्यूरोट्रांसमीटर्स। हु इज गोइंग टू प्रोवाइड? neurotransmitters. So one of the type of your neurotransmitter is your acetylcholine. याद रहेगा इतना? Is neurotransmitter clear to you guys? पक्का? Sure? चलो, is this structure clear to you? Basic structure of axon clear है? Coming to जो हम लोग ने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। क्या है सबसे पहले? मल्टीपोलर न्यूरॉन। सो कैन यू सी देयर इज अ डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपोलर? जो हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर बोला उससे कुछ डिफरेंट है कि सब सेम ही है? सेम लग रहा है? अलग है कुछ? ऑल्सो सी दिस यूनिपोलर। अब यूनिपोलर में क्या होता है? यू विल सी दिस इज योर व्हाट इज दिस पार्ट? पक्का? और ये दोनों पार्ट क्या है? एक्सॉन है। तो फिर ये एंड में इधर वापस डेंड्राइट कैसा आ रहा है? Yes. Observe the diagram again and tell me. देखो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या बोलता है? अगर ये मेरा न्यूक्लियस का सेल बॉडी का पार्ट है तो उसी से डायरेक्टली इमर्ज होके डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स बनेंगे।
That is your normal structure that says you, right? हाँ, यहाँ पे if you see this is your cell body, सेल बॉडी है ये, न्यूक्लियस इधर है, फिर इफ यू विल सी थोड़ा सा एक्सॉन का पार्ट आ रहा है एंड योर डेंड्राइट्स आर एट द एंड फॉर कैरिंग द इम्पल्स, राइट? दिस इज योर डेंड्राइट, एंड में आ रहा है, साथ में नहीं है। और ये साइड वाला क्या है? डेंड्राइट ही है, पक्का वो डेंड्राइट है। सोच ले, अभी भी टाइम दे दो। हाँ, सोच लेना। ये डेंड्राइट है या एक्सॉन है? एक्सॉन टर्मिनल है। अच्छा, डिफरेंस क्यों बोला मैंने? इफ यू सी यहाँ पे छोटे छोटे बल्ब्स बनाए हैं, वेयर इसके स्ट्रक्चर में बल्ब्स नहीं है। दिख रहा है यहाँ पे तुम लोगों को कोई बल्ब? सिंपल हो रहा है। कमिंग टू दिस इज योर एक और टाइप है जहाँ पे बीच में कैन यू सी साइटोन है और डेंड्राइट्स स्कैटर्ड है अलग अलग फॉर्म में। यहाँ पे कोई भी टाइप का एक्सॉन हमको दिख रहा नहीं है। कमिंग टू बायपोलर, बायपोलर में क्या हो रहा है? Bipolar का structure, can you see it is again a different type of structure, but more or less it looks like your unipolar neuron only, है ना? Majority तो सेम दिख रहा है कि डिफरेंस है कुछ? बोलोगे कुछ? मैं मारने नहीं वाली हूँ तुम लोग को, आंसर करोगे कुछ डिफरेंस का? Any difference? Very good. Then in multipolar what we can see, we have arisement of a lot of dendrites and dendrons, है ना? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। तो ये जो हम लोग नॉर्मल वाला जो बनाते हैं, ये कौन सा टाइप है? ये जो हम लोग बनाते हैं वो कौन सा टाइप है? ये डायग्राम देखो और ये डायग्राम देखो और बताओ मुझे, जो हम लोग नॉर्मली स्टडी करते हैं वो कौन सा टाइप ऑफ न्यूरॉन है? मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर है ना? लॉट ऑफ अराइजमेंट ऑफ डेंड्राइट्स, सिंगल अराइजमेंट ऑफ डेंड्राइट। समझा? समझा? अभी हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। व्हाट कैन वी राइट? यूनिपोलर के बारे में क्या लिख सकते हैं? द बॉडी हैज ओनली वन, क्या था डायग्राम में? सिर्फ एक क्या दिख रहा था हम लोग को? एक्सॉन क्लियरली था, राइट? सो इट हैज ओनली वन एक्सॉन। कहाँ पे मिलता है ये? मेजरली यू विल फाइंड देम इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये? सॉरी नहीं, एक्सॉन यहाँ पे तो एक ही है ना? इट इज काउंटेड एज वन ओनली, सो इट्स लाइक सेम ही अराइज हो रहा है। यस अब आते हैं हम मल्टीपोलर पे। मल्टीपोलर में क्या हो रहा है? या लेट्स फर्स्ट डू बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होगा? इट हैज वन साइटोन, वन एक्सॉन, या फिर हम ऐसा लिखते हैं हैज वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट।
2 डेंड्राइट्स दिखे थे तुम लोग को बाइपोलर में? एक्सॉन डेंड्राइट, यहाँ पे लेबलिंग में मेजर हमारा एक्सॉन है और ये हमेशा एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होगा, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, इसलिए कंफ्यूजिंग है, बट थ्रू द स्टेटमेंट वी कैन रिमेंबर कि किसके लिए क्या है, ठीक है। सो इट हैज़ 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट। कहाँ मिलेगा बाइपोलर? रेटिना ऑफ आई। और कहाँ था? और भी कुछ लिखा था डायग्राम में, और कहाँ है? olfactory neuron. So if it's olfactory neuron, then where can you also find? सिर्फ आई में मिलेगा या कहीं और भी मिल सकता है? कहाँ कहाँ होगा? olfactory cells कहाँ कहाँ होते हैं? Is my question. अरे olfactory का मतलब क्या होता है? आइज के लिए तो वी यूज ऑडिटरी और ऐसा वर्ड्स, सॉरी ऑडिटरी ईयर का है रे, ऑडिटरी इज ईयर का ओनली, ऑल्फैक्टरीज अच्छा मेरे को सारे टाइप्स ऑफ ये बताओ, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी और क्या होता है? ऑप्टिक, then gustatory is going to be for your taste, वो भी नहीं पता है, फाइव सेंसेस। मल्टीपोलर बताओ, विल कम बैक उधर बाद में। मल्टीपोलर में क्या आएगा? 1 एक्सॉन, कहाँ मिलेगा? और कहाँ मिलेगा? यस, और कहाँ मिलेगा? और बस, गुड। नेक्स्ट इज सूडो पोलर। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे एक सिंगल प्रोसेस अराइज होता है और वही फिर आगे चल के डिवाइड होता है। So it will start as a single and then it will divide. So it will start as a cytone, then it will divide into dendrites. समझ रहे? अरे एक सिंगल सेल से ही पूरा बनेगा बेसिकली। यहाँ पे कैसे हम लोग 2-3 अलग अलग पार्ट्स डिस्कस किए, वैसे यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे पहले क्या बनेगा? एक सिंगल पॉइंट से साइटोन बनेगा, साइटोन से क्या बनेगा? एक्सॉन और डेंड्राइट। सो यहाँ पे I'll write here single process arise from cytone, then divides into axon and dendrites. Can you give me any example? कहाँ मिलेगा ये? एग्जाम्पल दे सकते हो?
dorsal root of ganglia of spinal nerves. Is neuron clear now? Types clear है? Sure. चलो अब मुझे बताओ या लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज नर्व एंड व्हाट इज गैंग्लिया या गैंग्लियन बोलते हैं. लिंक टूट जाएगा. यस, सिंस वी रोट गैंग्लिया पीछे, व्हाट इज गैंग्लिया एंड व्हाट इज नर्व? दोनों सेम होते हैं, अलग होते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस? Nerve is your bundle of axon in a tubular sheath. What is ganglia then? Aggregation of sidon. Cool? Simple? Sure. So nerves में हमारे पास फिर 3 टाइप की nerves आ जाती है. Again, which is going to be your sensory, motor and mixed. Sensory और motor का function again same रहेगा जो न्यूरॉन का है. Mixed में क्या आएगा? Which will have both nerves, right? Correct? Simple. न्यूरॉन्स का पार्ट क्लियर है? पक्का अच्छे से समझा है? श्योर? Is this structure clear? Now we will go to a very important part. Yes. कि impulse generate कैसे होती है? So we are going to talk about impulse transmission. How are impulse transmitted? Can you guys tell me? With the help of सोडियम पंप. कहाँ हो रहा है ये? सेल के अंदर हो रहा है. सो वी हैव सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन और किसका कॉन्सेंट्रेशन होता है अंदर? पोटेशियम और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन होता है. तो लेट्स से दिस इज माय, व्हाट इज दिस? माय एक्सॉन या एक मेम्ब्रेन है मेरी, राइट? तो जो नर्व इम्पल्स है वो डायरेक्टली पूरा ट्रैवल नहीं करता. इट इज गोइंग टू ट्रैवल इन सेक्शंस, राइट? इट नेवर ट्रैवल्स ऑल द वे एक साथ इन द होल एक्सॉन. सेक्शंस में ट्रैवल करता है. तो सेक्शंस में कैसे ट्रैवल करता है? ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होती है कुछ. इट हैज सर्टेन परमिएबिलिटी. सब चीजों को अंदर बाहर आने देंगे क्या? It is going to be permeable to something and non-permeable to some things, right? So initially इनके अंदर आयंस होंगे. अंदर की तरफ कौन सा आयंस होंगे? बाहर की तरफ कौन सा आयंस होंगे? पॉजिटिव आयंस. अंदर नेगेटिव है, मतलब अंदर क्या ज्यादा है? व्हाट इज हाई हियर? सोडियम और पोटेशियम का बात कर रहे हैं, या लेट्स हम लोग के का बात कर रहे हैं अभी. तो किधर के आयंस ज्यादा होंगे और के आयंस कम किधर होंगे? कहाँ पे?
अंदर ज्यादा होंगे, सो देयर इज हाई K प्लस आयंस एंड बाहर इज लो K प्लस आयंस। ठीक है, फिलहाल ये जो स्टेट है जब मुझे कोई इम्पल्स नहीं मिल रहा है तो ये रेस्टिंग ग्रेडियंट है। क्या है? दैट मीन्स दे आर इन पोलराइज्ड स्टेट। कौन सी स्टेट में है ये लोग? कौन सी स्टेट में है ये लोग? पोलराइज्ड स्टेट में। पोलराइज्ड स्टेट इज नथिंग बट वी कैन से एक इक्विलिब्रियम पे है, राइट? हाँ, श्योर, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा इसके बाद? और ये मेंटेन होगा अलोंग विथ, इट इज मेंटेन्ड बाय लेट्स से Na प्लस है, Na माइनस है, और के दोनों भी प्लस है। तो Na ट्रांसपोर्ट करेगा तब हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा। सो ईच सेक्शन में 3 Na होते हैं एंड 2 K प्लस होते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें मेंटेन्ड है। सिंपल। कितना होता है? 3 Na एंड 2 K प्लस। क्लियर? अभी ये क्या है? रेस्टिंग स्टेज पे है। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही इम्पल्स मिलती है, व्हाट विल हैपन? द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज गोइंग टू चेंज, और क्या होगा? तुम्हारे K प्लस आयन का जो चैनल है वो शिफ्ट होगा, बट एज आई सेड इट इज गोइंग टू जस्ट शिफ्ट इन सेक्शंस। तो होगा डी पोलराइजेशन। क्या होगा? डीपोलराइजेशन में क्या होता है? योर आयंस विल गेट, व्हाई द आयंस आर गेटिंग एक्सचेंज्ड? परमिएबिलिटी की वजह से। सो परमिएबिलिटी चेंज हुई, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, तो ये जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। सो जो परमिएबिलिटी का चेंजेस हुआ है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, आयंस एक्सचेंज हुए, दैट इज योर एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे हुआ क्या? बेसिकली जो आयंस थे बाहर पॉजिटिव वो अंदर आ गए, जो नेगेटिव आयंस है वो बाहर चले गए। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया है ना? समझा? दिस वाज योर सेकेंड पॉइंट, विच इज योर फर्स्ट हमारा पोलराइजेशन था, सेकेंड हुआ डीपोलराइजेशन। फिर वो इम्पल्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये वाला पार्ट वापस क्या हो जाएगा? रीपोलराइज्ड। क्या हो जाएगा? रीपोलराइज्ड। रीपोलराइज्ड क्यों होता है? क्योंकि एक्सेसिव K प्लस आयंस वापस कहाँ आएंगे? एक्सेसिव K प्लस आयंस कहाँ होंगे? Cause because of excessive K plus ions, exterior will result in again the exchange of ions. तो वापस पॉजिटिव नेगेटिव अपने अपने जगह पे चले जाएंगे एंड वापस हमको क्या मिल जाएगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल मिला था, यहाँ पे क्या मिल रहा है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इज इट क्लियर? सिंपल है? कुछ डिफिकल्टी है इसमें? श्योर? यहाँ तक समझा है? समझा तुमको यहाँ तक पक्का? नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन?
क्या पूछा मैंने क्वेश्चन? सॉल्टेटरी कंडक्शन। अभी हमने यही पढ़ा है, तो तुम मुझे बता सकते हो व्हाट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन? और पढ़ा है कभी सॉल्टेटरी कंडक्शन वर्ड? This is moreover with respect to your myelated and non-myelated neurons. Okay. जो पॉइंट्स हमने पीछे ऐड नहीं किया वहाँ पे, माइलेटेड एंड नॉन माइलेटेड, तो लोग मुझे बता सकते हो इम्पल्स फास्टर कहाँ से ट्रैवल करेंगे, माइलेटेड से या नॉन माइलेटेड से? Why migrated? If you say migrated, then why? If you say non-migrated, then why? दोनों का रीजन मेरे को चाहिए. देखो अंडरस्टैंड करो, जैसे मैंने बोला सेक्शंस में ट्रैवलिंग हो रहा है और हम लोग सेक्शंस एक्सॉन का डिस्कस कर रहे थे. तो जो सेक्शंस क्रिएट होते हैं वो तुम्हारे नोड्स की वजह से क्रिएट होते हैं. एक नोड में होगा, फिर वो एक नोड से दूसरे नोड में जाएगा. नोड किस में होगा? माइलेटेड में. तो माइलेटेड में इम्पल्स जो है वो फास्टर ट्रैवल करेंगे और नॉन माइलेटेड में इम्पल्स जो है वो स्लो ट्रैवल करेंगे. तो ये जो इम्पल्स का ट्रैवलिंग है थ्रू अ माइलेटेड न्यूरॉन इज नोन एज योर माइलेटेड में फास्टर होगा, नॉन माइलेटेड में स्लोअर होगा, लेकिन दोनों भी प्रेजेंट तो है ना. बोथ द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट. तो एक्सॉन से फास्टर कहाँ पे करेगा? स्मॉलर करंट्स में. देखो एक फास्टर करंट से इट कैन गो टू अ स्मॉलर करंट. तो अगर मुझे जहाँ पे फास्टर करंट चाहिए वहां पे मेरे कौन से टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होंगे? तो द जंप फ्रॉम योर फास्टर करंट टू स्लोअर करंट, basically from myelated to non-myelated neuron is nothing but your saltatory conduction. Is it clear? Simple है. I'll just mention here, this is faster and this is slower. So yes, repeat. How can I define this? कुछ करंट वरंट जैसे वर्ड्स मैंने यूज किए थे. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में लिख देते हैं. जंप फ्रॉम myelated or we can say faster current to non-myelated, which is your smaller and slow current. तो इसी कंडक्शन को हम लोग बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन. सिंपल है, इजी, श्योर, पक्का. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज माय सिनैप्स का कंडक्शन. सिनैप्स जो है वो दो टाइप का कंडक्शन कर रहा है. एक है इलेक्ट्रिकल एंड दूसरा है केमिकल. ओके कूल. अब इलेक्ट्रिकल में कैसा हो रहा है? So when we talk about this, we have, again I'll just make two neurons. We have pre and post synaptic neuron. We have presynaptic neuron and we have post synaptic neuron. तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में क्या होगा?
देयर इज अ क्रिएशन ऑफ गैप जंक्शन. हम लोग ने पीछे भी गैप जंक्शन वर्ड पढ़ा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा. नाउ व्हाट इज गैप जंक्शन? दो न्यूरॉन्स के बीच का जो एक पॉइंट होता है ऑफ कांटेक्ट, दैट इज नथिंग बट योर गैप जंक्शन. तो मुझे अब बताओ, सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल, यू गाइस कैन टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी इन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल. दोनों में से फास्टर कौन सा होगा? कूल. This is going to be a bit slower than the electrical, but not exactly slower. Now your electrical is not going to need, no need of neurotransmitters, and here you are going to need neurotransmitter. अभी बता सकते हो कुछ मुझे तुम लोग? This is because of ions, and that is because of chemicals, right? So have you ever heard about the word synaptic delay? Synaptic delay. क्या होगा synaptic delay? Guys, tell me what is synaptic delay. एक चीज से दूसरे चीज तक जाने में तुमको एक 0.1 सेकेंड का तो डिफरेंस होएगा ही ना. यू कांट बी ऑलवेज एक्यूरेट, एकदम इमीडिएट नहीं होने वाला कोई भी ट्रांसफर. तो कुछ तो एक 0.मिली सेकेंड का तो डिफरेंस होगा ही. दैट डिफरेंस इज योर सिनेप्टिक डिले, जो टाइम कंज्यूम होगा वो. तो मुझे बताओ, ये दोनों में से सिनेप्टिक डिले कहाँ पे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल में या केमिकल में? सो यहाँ पे आई कैन राइट लेस सिनेप्टिक डिले, मोर सिनेप्टिक डिले. हमारी बॉडी में ज्यादा दोनों में से कौन से टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, या कौन सा टाइप ऑफ सिग्नलिंग होता है? बताओ. वी हैव मोर केमिकल. इलेक्ट्रिकल इज वेरी रेयर, सिर्फ स्पेसिफिक जगह पे होता है. मेजॉरिटी में क्या होता है? केमिकल. इलेक्ट्रिकल कहाँ मिलेगा हमको, गैस करोगे? कार्डियक मसल फाइबर्स में. कहाँ पे मिलने वाला है? कार्डियक मसल फाइबर्स. और कुछ? इंटेस्टाइन में. और वेरी इंपॉर्टेंट, योर एपिथेलियल सेल्स ऑफ लेंस. कहाँ पे मिलेगा हमको? एपिथेलियल सेल्स ऑफ लेंस. सिंपल, याद रहेंगे. 3 एग्जाम्पल्स ही दिए मैंने यहाँ पे, वो 3 इजीली याद रख सकते हो. नेक्स्ट इज केमिकल. केमिकल कहाँ कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे ये नहीं मिलता. सो इन मेजॉरिटी ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर गोइंग टू हैव केमिकल. यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, राइट? तो जैसे तुम लोग ने यहाँ पे आयंस बोला, बट दिस इज मोर ऑफ लाइक इलेक्ट्रिकल पार्ट, ठीक है? आयंस का जब हम लोग इन्वॉल्वमेंट बोल रहे हैं, तो इट कैन ऑल्सो इंक्लूड योर केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट. तो जैसे सोडियम आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, that is also going to happen in chemical also.
तो ओनली डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. एट द एंड सोडियम आयंस का एक्सचेंज होना ही है, तो ही इम्पल्स आगे पास होंगे ना. आर यू गेटिंग? Sodium ions has to enter the cell. Without that, there is no possible for your impulse to travel. Clear? अब ये जो सिनेप्टिक क्लिफ्ट होता है हमारे पास, कहाँ पे होता है? एंड में. तो वो बाइंड किसके साथ करता है? हमारा प्रोटीन रिसेप्टर के साथ वो क्या करेगा? बाइंड करेगा. फिर उससे क्या होगा? मेरा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का क्रिएशन होगा या मेम्ब्रेन क्रिएट होगी. फिर वो चैनल्स ओपन करता है फॉर माय आयंस टू पास टू दी अदर वन. समझा? एम आई क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? पक्का? शैल वी मूव अहेड? क्लियर है? ये इतना सिंपल था, यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट दैट वी हैव टू स्टार्ट इज विथ आवर ब्रेन. बेसिकली विल स्टार्ट विथ CNS एंड ऑल. सो CNS करना है, उसमें हम लोग ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. देन वी आर गोइंग टू स्टडी स्पाइनल कॉर्ड का पूरा स्ट्रक्चर, देन पेरिफेरल एंड दिस नर्वस सिस्टम, एंड देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन. आई थिंक रिफ्लेक्स एक्शन में शॉर्ट चीज़ें हैं, तो विल जस्ट ओवरव्यू द रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, रिफ्लेक्स एक्शन बता सकते हो क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? सो हमारी बॉडी में दो टाइप की मूवमेंट्स होती है. एक वॉलेंट्री मूवमेंट होता है और एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है. करेक्ट? राइट? सो व्हेन आई टॉक अबाउट वॉलेंट्री मूवमेंट, दे आर गोइंग टू बी ऑन माय ओन विश. आई एम गोइंग टू मूव देम ऑन माय ओन विश. इनवॉलेंट्री वो होते हैं जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं. जैसे अभी मेरी बॉडी में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मेरी ब्रीथिंग चालू है, सर्कुलेशन चालू है, डाइजेशन भी चालू होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अपना काम कर रहा होगा. राइट? सो सिमिलर. सो यहाँ पे हम लोग का मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है इनवॉलेंट्री का. तो मुझे बताओ, अगर ये भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट है तो हम इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड एन इनवॉलेंट्री मूवमेंट? आई एम सेइंग कि रिफ्लेक्स एक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट. तो दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? यस, बोल. इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंस क्या हुआ? पर्टिकुलर टाइम पे होता है. और इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन केमिकल नहीं होता है. वाओ. और reflex action is something which is a sudden reaction, whereas जो हमारी बॉडी के बाकी के जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रहे हैं वो कंटिन्यूसली हो रहे हैं. ये मेरा एक सडन इनवॉलेंट्री एक्शन है जो हो रहा है, जो एक्चुअली में हमारा वॉलेंट्री भी हो सकता है. मेरा हाथ का मूवमेंट इज वॉलेंट्री, बट अगर कोई सडन चीज आएगी तो वो क्या करेगा? रिफ्लेक्स देगा, विच इज नॉट इन माई हैंड. दैट इज माई इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑकरिंग. करेक्ट? हाँ कि नहीं? जैसे आज ये बहुत अच्छी बातें कर रहा है तो मेरे को इसको कुछ बोलने का मन कर नहीं रहा है, बट सपोज इसने कुछ बकवास कर दी तो मैंने इसको कुछ बोला, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी माई रिफ्लेक्स एक्शन अगेंस्ट वॉट ही सेड. राइट? नहीं? देन वॉट इट इज गोइंग टू बी? सिर्फ हाथ का मूवमेंट करूंगी तो ही फिजिकल मूवमेंट ही रिफ्लेक्स एक्शन में आएगा. तो अगर मैं इसको कुछ उल्टा बोलूँ, दैट इज नॉट रिफ्लेक्स एक्शन. अगर मेरे को तुम लोग ने कुछ बोला और मैं तुम पे गुस्सा हो गई, दैट इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन. क्या है?
वो एक्शन नहीं एक्शन Every action has a reaction. तो मेजरली जो हमको दिखने वाले एक्शंस होते हैं वो हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन में कंसिडर करते हैं. स्नीजिंग इज गोइंग टू बी अ रिफ्लेक्स एक्शन. ब्लिंकिंग ऑफ आई, थप्पड़ मारना, जंप. हाँ जंप. अचानक से कॉकरोच आ गया सामने तो क्या करेंगे? वैसे. अबे नॉर्मल नॉर्मल जंप नहीं दे. रनिंग रनिंग रनिंग. 570 सुन के कुछ छुपाना बड़ा बदतमीज है यार तू. वो लेके दिखाएगा देख. वो लेके दिखाएगा 570 नीट में. अबे हाँ तो बोल, मैं तेरा साइड लेके बोल रही हूँ मैं. It's okay. मुझे होप्स है तेरे से. तेरे से 750 का होप्स है. बोल अब. 750 है एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग. तो कितना है? 700. मैं बोलूंगा थोड़ी ना जो है और वाह. गोल ही सेट नहीं किया मतलब हमने. चाहिए 400 500 700 कुछ को नीचे इतना कम चाहिए तो हमें इतने कम में कोई खड़ा भी नहीं रखेगा. मिनिमम. मैक्स जितना ज्यादा जा सकते हैं मेरे को क्या, तेरे है कुछ एक्सपेक्टेशंस? ध्रुव एक्चुअली एक्सपेक्टेशन वही होना चाहिए तब जाके वी रीच समवेयर अराउंड 700. वो भी अगर पेपर लास्ट ईयर जैसा टफ आ गया तो 650 तक. हाँ इस बार फर्स्ट को भी फर्स्ट को 686 आया है. हाँ 1 को. हाँ तो अरे तो हर हर किसी का एम तो वही होना चाहिए ना कि 1 आने का. यार 1 आना है. एम वो होना चाहिए तब जाके हम किधर 10 20 30 किधर तो आएंगे. 3000 4000 समवेयर यू विल लैंड. कठिन है कठिन. रिफ्लेक्स एक्शन क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है वो समझा. अभी रिफ्लेक्स एक्शन में कौन से नर्व्स रोल प्ले करेंगे? स्पाइनल नर्व्स. क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में हमारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं होती है और स्पाइनल कॉर्ड इज ओनली गिव यू द रिफ्लेक्स का रिएक्शन. तो व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? What is the shortest path traveled by neuron? तो the shortest path किसका? shortest path तो बोला तुम लोग ने किसका, लेकिन मेरा तुम्हारा. कूल सिंपल. सो जो हम लोग पाथ स्टडी करते हैं दैट इज योर रिफ्लेक्स आर्क. कहां से शुरू होता है? इट विल स्टार्ट फ्रॉम रिसेप्टर. इट विल स्टार्ट फ्रॉम रिसेप्टर जो कि मिलता है स्टिमुलस. रिसेप्टर से इट विल गो with the help of sensory neurons into spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन आएगी टू मोटर न्यूरॉन, association neuron, then motor neuron, then
effector, which is going to be your muscle, which will give you response. Simple, cool. अब रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो दो टाइप का है, नेचुरल और कंडीशनड. Natural are going to be your inborn reflexes. Conditioned are the one which you are going to learn eventually. Okay. So sneezing is going to be, dancing is going to be. समझा डिफरेंस इनबॉर्न और कंडीशन का? सिंपल है. इज एनी डिफिकल्टी इन दिस पार्ट? पक्का समझ गया यहाँ तक तुम लोग को अच्छे से? श्योर आगे जाए हम लोग कि नहीं? अच्छा, सेंस ऑर्गन्स इज कैंसल्ड, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू सेंस ऑर्गन्स. यस, हाँ, बट नाउ इट इज नॉट देयर, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू सेंस ऑर्गन्स. एनसीईआरटी से कैंसल्ड है सेंस ऑर्गन्स, नहीं है उसमें. सो वी आर नॉट गोइंग. सेंस ऑर्गन्स में दो ही चीजें थी, आई एंड ईयर. तो बेसिक स्ट्रक्चर मैं तुम लोगों को बता दूंगी आई और ईयर का, जस्ट एक्सटर्नली स्ट्रक्चर क्या है. इन डेप्थ हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट इज कैंसल्ड. सो विल जस्ट स्टिक टू योर नर्वस सिस्टम ओनली. एम आई क्लियर? So in tomorrow's class we are going to start directly with your central nervous system. ठीक है, एक बार सिस्टम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो एंड में वी आर गोइंग टू आल्सो टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स, जैसे हम लोग ने प्रीवियस दो चैप्टर्स के किए. क्लियर? सिंपल. होमवर्क क्या दिया है मैंने? डेफिनेशंस का. दैट्स द ओनली होमवर्क यू हैव फॉर टुडे. एंड एंड ऑफ द चैप्टर में यू विल मेक श्योर कि जब हम लोग सारे सिस्टम्स पढ़ ले तो उनको तुम एक माइंड मैप के फॉर्मेट में बना के मुझे दिखाओगे. कूल? चलो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास.